Hello students, in today's lecture of the liquidator's account we are starting with the topic capital deficiency. First we have understand that is capital deficiency. What you mean by the capital deficiency? That means if the liquidator sold all the assets and he left the whatever balance it is, he will make the payment in the particular order, but in the somewhere he has not enough money to pay back some kind of the unsecured creditor, it might not payable to the preference share capital, right? So in that situation the difference is called capital deficiency. That means we don't have enough amount to pay. That is the obvious thing that might happen, right? So in this situation we have to calculate the capital deficiency, and according to that we will take the amount from the equity shareholders, either it's been a written or it's been a to be called. इसका मतलब है इन द प्रपोर्शन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, कोई इक्विटी शेयर को पेमेंट करना पड़ेगा या किसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, किसी को देना पड़ेगा, राइट? सो इन दिस देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट और स्पेसिफिक रूल्स दैट वी हैव टू मेक a distribution of the capital deficiency. So let's see the steps. Step number 1, that is first is find out the amount left after making of the last payment. Last payment कर दिया, बाकी इनफ अमाउंट नहीं है बाकी के पेमेंट करने का, बट थोड़ी बहुत अमाउंट रह जाती है तो वो हमें फाइंड करनी है. देन स्टेप नंबर 2, अमाउंट टू बी रिटर्न, और अमाउंट कितना रिटर्न देना है वो फाइंड करना है. इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी नहीं पेमेंट हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी पेमेंट नहीं हुए हैं और इक्विटी शेयर को भी पेमेंट नहीं हुआ है, राइट? सो ये टोटल अमाउंट इतना रिटर्न करना है और हमारे पास इतनी ही अमाउंट है, तो दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम मिलेंगे कैपिटल डेफिशिएंसी. क्या मिलेगा? कैपिटल डेफिशिएंसी मिलेगी. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल डेफिशिएंसी, देन we have to distribute on the basis of the proportion in which divided of the nominal value of this shares, यानी कि proportion में distribute करना होगा in the proportion of the nominal value of the shares, right? After that amount to be written is equals to paid up capital minus capital deficiency. ये फाइंड करना पड़ेगा. अगर आंसर प्लस में आया तो उसे रिटर्न यानी कि उसे अमाउंट मिलेगी, और जिसका आंसर माइनस में आया उससे हम अमाउंट कलेक्ट करेंगे यानी कि टू बी कॉल्ड, राइट? सो इस हिसाब से इस स्टेप में हमें कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करनी पड़ेगी और मनी अरेंज करना पड़ेगा, right? This is the distribution of the capital deficiency. If the liquidator have not enough amount to pay back all the liabilities including the capitals, right? So let's see one example and you can understand this example through example, that is capital deficiency. We are doing the illustration number 9, in which we have to make a statement in some of the, and we will first find out the capital deficiency slowly and gradually as per the particular order and as per the rules. Let's see. Satyam Limited went into the voluntary liquidation on the 31st December 2010. The balance sheet as on the date was given. There are preference shareholders and 3 type of equity share are there. 3 type of equity share are there: 80 paid up, 60 paid up and 40 paid up, right? So this 3 type of equity share will be there. Then 5% mortgage distribution, that is creditor with his floating charges debenture is there, outstanding debenture, and creditor 1,35,000. Asset, out of the asset realization, land and building 84,400, machinery 36,000, stock 9,100 and debtor 28,500. Creditor include the preferential creditor of rupees 5,000, यानी कि 1,35,000 में से 5,000 क्या है?
प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। इन्वेस्टमेंट वर मोर्गेज विद द क्रेडिटर्स ऑफ ₹65,000 हु रियलाइज 71,000 ऑफ द सेम, यानी कि जो भी क्रेडिटर्स हैं उसमें से 65,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है विद द इन्वेस्टमेंट एंड 71,000 वी हैव रिसीव्ड। द एक्सेस वॉज गिवन टू द लिक्विडेटर्स, यानी कि 71,000 के इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुए, अमाउंट थी 65,000 की, बाकी का रिटर्न हुआ लिक्विडेटर को। द क्रेडिटर ऑफ ₹25,000 विड बी पेड 3% लेस, creditors of ₹10,000 was paid 35% less, remaining creditors were paid fully. So ये bifurcation है creditors का। Then debenture holder were paid on 30th June 2011, that means through December to June, that is accrued interest will be there. Then liquidation expense were 6,795 and liquidators entitled to remuneration 3% on the asset realized by him and 2% on the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors. Right? So this is how we have to prepare a statement of the liquidators, and we have to show the necessary calculating including the remuneration and the capital deficiencies calculation. Right? So let's get started. तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश लिख लेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 27,500। उसके बाद जितनी भी असेट रियलाइज हो रही है वो लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 84,400, then machinery 36,000, then stock 9,100 and debtors 28,500. Total is 1,58,000. So this much amount asset realized. उसके बाद हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए यहाँ पे वन लाइन दी गई है, दैट इज इन्वेस्टमेंट वर मोर्गेज विद द क्रेडिटर्स ऑफ ₹65,000, दैट मीन्स 65,000 रुपीज क्रेडिटर वर आर फुल्ली सिक्योर्ड हु रियलाइज 71,000 ऑफ द सेम एंड द एक्सेस वॉज गिवन टू द लिक्विडेटर्स। इसका मतलब क्या है कि 65,000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे, वो इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर्गेज से, तो हमने उसको इन्वेस्टमेंट दे दिए। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी रियलाइज हुई? 71,000। एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट गिवन टू द लिक्विडेटर, यानी कि 65,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से हमने इन्वेस्टमेंट दे दिए 71,000 की, यानी कि डिफरेंस कितना आया? 71 minus 69, that is 71 minus 65, that is 6. So excess amount is 6,000 rupees. So यहाँ पे excess amount है वो liquidator को मिल गई, यानी कि liquidator को excess amount कितनी मिली? 6,000 rupees. So here we will write receive 6,000 rupees from the fully secured creditors. 65,000 minus 71,000, that is a surplus. So ये क्या कहलाएगा? Surplus. That is the surplus amount from the fully secured creditors. अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट सिर्फ 60,000 होती, सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 60,000 होती, तो हमें 5,000 और पे करना पड़ता, तो हम दिस साइड लिखते कि secured creditors ₹5,000, राइट? इन्वेस्टमेंट तो दे ही दिए, उसके साथ में 5,000 एक्स्ट्रा देने हैं, बट यहाँ पे तो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट होगी यानी कि सरप्लस हुआ, सरप्लस हम दिस साइड लिखेंगे। समझ में आया? तो फर्स्टली हमें पेमेंट करना है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, वो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट बदले में इन्वेस्टमेंट दे दी है, राइट? अभी हम पे करेंगे लीगल चार्जेस, यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस इंक्लूडिंग लीगल चार्जेस एंड द रेम्यूनरेशन।
right? So let's start with the legal expense or legal liquidation expense, that is rupees 6795. Amount is 6795. Then liquidators remuneration. रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. रेम्यूनरेशन है 3% ऑन असेट रियलाइज्ड. 3% ऑन असेट रियलाइज्ड. तो असेट रियलाइज्ड है 1,58,000 हियर. सो 1,58,000 का 3%, दैट इज 4740, राइट. देन 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अभी हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं वो हमारे पास नहीं है, तो फटाफट से वो कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट. टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं? 3,35,000. कितने हैं? सॉरी 1,35,000. Out of 5,000 is preferential creditors. So remaining कितने आए? 1,30,000. 1,30,000 में से 65,000 हैं वो सिक्योर्ड थे. यहाँ पे सभी बाइफिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है. हम उसी हिसाब से कर रहे हैं. 5,000 प्रेफरेंशियल है तो वो माइनस किया. देन 65,000 के मोर्टगेज वाले क्रेडिटर्स थे, दैट मीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, वो माइनस किया. रिमेनिंग बैलेंस आई 65,000 रुपीज, राइट. 65,000 हुए वो अनसिक्योर्ड हैं. ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं बट उसके पेमेंट के हिसाब से पेमेंट होगा. दैट इज 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड. हमने कितना पेमेंट किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं उसके हिसाब से नहीं, हमने कितना पेमेंट किया. तो पेमेंट का भी बाइफिकेशन दिया गया है. पेमेंट का बाइफिकेशन क्या है? 25,000 वर पेड 3% लेस, 10,000 वर पेड 35% लेस एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड फुल्ली. सो इसमें भी बाइफिकेशन होगा. 25,000 उसको हम 3% लेस पेमेंट करेंगे, यानी कि 25,000 इंटू 3% लेस, यानी कि उससे हम पेमेंट करेंगे 24,250. 25,000 के जितने भी क्रेडिटर्स हैं उससे हम पेमेंट करेंगे 24,250. देन 10,000 रुपीज के जो क्रेडिटर्स हैं उसे हम पेमेंट करेंगे 33% लेस, यानी कि 6,700. Really sorry, we have to calculate 35%. Sorry. 10,000 into 35% less. That means we will pay 6,500. And remaining we have to paid fully. यानी कि 65,000 टोटल थे, उसमें से 35,000 तो लेस पेमेंट हुआ, बाकी के फुल पेमेंट हो गए. तो टोटल पेमेंट कितना हुआ? 24,250 प्लस 6,500 प्लस 30,000. टोटल पेड 60,750. टोटल पेड 60,750 टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. और रेम्यूनरेशन है कितना है? रेम्यूनरेशन 2%. सो इसका 2% रेम्यूनरेशन 1215. कितना हुआ? 1215, राइट. सो यहाँ पे आएगा 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के हिसाब से 1215. टोटल रेम्यूनरेशन पेड इज 5955, राइट. सो लीगल एक्सपेंस पे होने जाने के बाद, रेम्यूनरेशन पे होने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को हम पे करते हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 5,000. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद हम किसे पेमेंट करेंगे?
डिबेंचर होल्डर्स को, या राइट। सो डिबेंचर होल्डर को हमें पेमेंट करना है, तो डिबेंचर है 20,000 रुपीज प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 रुपीज प्लस अक्रूड इंटरेस्ट भी है। अक्रूड इंटरेस्ट मैंने जब भी आपको बताया था तभी आपको वो डेट याद करवाई थी, दैट इज इन द 6 मंथ एंड क्लोज्ड इन द डिसम्बर, यानी कि 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ का अक्रूड इंटरेस्ट बाकी है, दैट इज 20,000 5% into 6 by 12, that is 500 rupees accrued interest. So 20,000 plus 1,000 plus 500, that is 21,500. Total amount paid to the preferential creditors. Then unsecured creditors. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया, 60,750। उसके बाद पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा। बट अभी देख लेते हैं कि हमारे पास इनफ अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट हो पाएगा, तो वो देख लेते हैं। तो हमारे पास अब तक कितनी अमाउंट है, 27,500, 1,58,000 एंड 6,000, दिस टोटल इज 1,91,000। आउट ऑफ टिल दिस लेट्स सी पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 1,91,500 है, उसमें से 6,795 पेमेंट हो गया, देन 5,955, then 5,000, then 21,500, then 60,750, राइट। सो यहाँ तक तो सभी पेमेंट हो रहे हैं। अभी हमारे पास अमाउंट कितना बचा है, 91,500। कितना अमाउंट बचा है, 91,500। वो हम यहाँ पे एज लिख लेते हैं कि हमारे पास इतनी ही बैलेंस है। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पे करना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीज पे करने हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख प्लस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। नहीं, डिविडेंड की अमाउंट नहीं दी गई है, तो हमें एटलीस्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो 1 लाख पे करना ही पड़ेगा, राइट। और उसके साथ साथ इक्विटी शेयर बाद में अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिलना चाहिए, बट यहाँ पे अमाउंट सफिशिएंट है ही नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 1 लाख पेमेंट करने थे, 91,500 ही है हमारे पास, दैट इज द अमाउंट। सो कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, हमारे पास अमाउंट कितनी बची है पेमेंट करने के बाद। लास्ट पेमेंट हमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को किया, उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितनी बची है, 91,500, दैट इज 91,500। देन स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में अमाउंट पेएबल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, अमाउंट पेएबल, यानी कि हमें कितना पेमेंट करना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 1 लाख रुपीज प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स के, यहाँ पे 3 टाइप्स के इक्विटी शेयर हैं, दैट इज A 80,000, B 42,000 एंड C 32,000। यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं है, बाद में वो देखेंगे। दैट इज अभी कितने अमाउंट देने हैं, 80, 42 एंड 30। सो टोटल अमाउंट कितनी हुई, हमें कितना पेमेंट करना है, 1,62,500। हमें टोटल 1,62,500 पे करना है, हमारे पास सिर्फ 91,500 है। तो स्टेप नंबर 3 क्या आया, कैपिटल डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1,62,500 माइनस 91,500, 1,62,500, 71,000 रुपीज। सॉरी, यहाँ पे अमाउंट आएगी 2,54,000 रुपीज एंड 2,54,000 माइनस 91,500, 2,54,000 माइनस 91,500।
देन कैपिटल डेफिशिएंसी आएगी 1,62,500. कितनी आएगी? 1,62,500. सो कैपिटल डेफिशिएंसी आई 1,62,500. दैट मीन्स हमारे पास इतनी अमाउंट पे करने के लिए नहीं है. तो हम ये पेमेंट कहाँ से लेंगे? ऑब्वियसली हम लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर से. कहाँ से लेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के पास से लेंगे. किस हिसाब से लेंगे? इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर वैल्यू. इन द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर वैल्यू. सो अभी हमें प्रपोर्शन फाइंड करना पड़ेगा. तो स्टेप नंबर 4 में हम प्रपोर्शन फाइंड करेंगे. प्रपोर्शन किस हिसाब से फाइंड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द शेयर्स. So proportion on the basis of number of shares, that is 1000 for A share, B के कितने हैं 700 and C के हैं 800. So proportion आया 1000 जैम 700 जैम 800, that is 10:7:8. proportion कितना आया? 10:7:8. तो इसके हिसाब से हम पेमेंट लेंगे फ्रॉम ए शेयर होल्डर्स, बी शेयर होल्डर्स एंड सी शेयर होल्डर्स. सो टोटल प्रपोर्शन कितना आया? 10:7:8. उसके हिसाब से अमाउंट कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे कैलकुलेशन में दिखा देती हूँ. दैट इज हमें कितने कितने हैं 1,62,500. अब ए के पास से कितने लेंगे? उसका प्रपोर्शन है 10. टोटल है 7 + 8 + 10, that is 25. So 1,62,500 into 10 divided by 25, that is 65,000. So A से पास से मिलेंगे 65,000, then B 1,62,500 into 7 by 25, that is 45,500. Then C 1,62,500 into 8 by 25, that is 52,000. That is 52,000. अब लास्ट स्टेप करेंगे कि किसको रिटर्न मिलेगा और किससे पास से मिलेगा, राइट? सो माइनस करेंगे, इस अमाउंट में से माइनस करेंगे पेड अप कैपिटल. क्या माइनस करेंगे? पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल, ए का पेड अप कैपिटल कितना है? 80,000 रुपीज. 80,000, 42 and 32. यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 15,000. डिफरेंस कितना आया? 15,000. यानी कि उसका पेड अप कैपिटल ज्यादा है, राइट? और जिसका कैपिटल पेड अप कैपिटल ज्यादा है उसे हम रिटर्न करेंगे. और जिसका पेड अप कैपिटल कम है वहां से हम टू बी कॉल्ड यानी कि उस इक्विटी शेयर होल्डर के पास से हम मंगवाएंगे. तो 45,500 माइनस 42,000, 3,500. यहाँ पे हम लिखेंगे कोल्ड और यहाँ पे भी हम लिखेंगे डिफरेंस है 20,000 कोल्ड. तो इस हिसाब से हमें कोल्ड यानी कि बी और सी पास से मंगवाने पड़ेंगे और ए को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट? सो पहले हम जिसके पास से कॉल की अमाउंट मंगवानी है उसके हम कॉल की अमाउंट 3,500 एंड 20,000 कॉल की अमाउंट मंगवाएंगे. सो किस किस से पास से मंगवाएंगे? बीज इक्विटी शेयर 3,500. कितना? 3,500. सो 700 है. एक शेयर के पास से हम कितना मंगवाएंगे? 3,500 डिवाइड बाय 700, दैट इज ₹5. सो इंटू 5 करेंगे. देन सीज इक्विटी शेयर ₹20,000. So 20,000 divide by
800 shares, ₹25 per share. So ₹25 per share हम मंगवाएंगे, राइट। अब देखते हैं हमारे पास इनफ कैपिटल है और ए को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 15,000 का। कैसे करेंगे? कितने हैं? 1,000 into 15 rupees we have to pay back, right? तो हमारे पास बैलेंस थी 91,500 की, राइट। उसमें से ये दोनों अमाउंट हमें मिली, राइट। सो 3,500 प्लस 20,000 दैट इज 1,15,000 हमें हमारे पास अब अमाउंट है। उसमें से डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे और बाकी के जो 15,000 हैं वो ए को मिल जाएंगे। इस हिसाब से ये अमाउंट टैली हुआ और हमने पूरी की पूरी अमाउंट जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पेमेंट कर दी। इसका मतलब ये है, और बी और सी कैपिटल को इतनी अमाउंट पर शेयर अमाउंट देनी पड़ेगी क्योंकि उसके फुल्ली पेड अप नहीं है, और ए को 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से अमाउंट मिलेगी, राइट। तो ऐसे आप कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करोगे और पेमेंट करोगे। टोटल 2,15,000 रुपीज। फिर से समझाती हूं कैपिटल डेफिशिएंसी। सबसे पहले ऑर्डर में पे करना होगा। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है या नहीं है वो हमें फाइंड करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 हम फाइंड करेंगे अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट, यानी कि अब तक जितनी भी पैसा था उसमें से सबसे पहले पेमेंट हो गया, बाकी कितना बचा? तो कि 91,500 बचा। हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपीज इसमें से पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि कैपिटल डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। तो कैपिटल डेफिशिएंसी की कितनी क्रिएट हुई? तो कि अमाउंट पेएबल। स्टेप नंबर 2 इज अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आई, उसमें से कैपिटल डेफिशिएंसी आई 1,62,500। ये 1,62,500 हम प्रपोर्शन में या तो मंगवाएंगे या तो उसको रिटर्न मिलेगा, प्रपोर्शन में मिलेगा। प्रपोर्शन किसके हिसाब से होगा? नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर्स हैं ए, बी एंड सी। प्रपोर्शन फाइंड किया, प्रपोर्शन के हिसाब से अमाउंट फाइंड की, उस अमाउंट में से पेड अप कैपिटल माइनस किया। जिसका पेड अप कैपिटल ज्यादा है उसको रिटर्न मिलेगा और जिसका पेड अप कैपिटल कम है उसको कॉल यानी कि उसके पास से मंगवाना पड़ेगा। सो बी और सी के पास से हमने मंगवाया और ए को पेमेंट मिला 15,000 का, राइट। तो इस हिसाब से हमने ये लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाया फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ द कैपिटल डेफिशिएंसी, राइट।